Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is composition, powers, and functions of Prime Minister of India. Composition, powers, and functions of Prime Minister of India. This is today's topic. प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट के बारे में हमने जाना, उसके पावर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ मोस्ट पावरफुल फंक्शनरी ऑफ द स्टेट. याद रखिएगा, ही कैन बी called ruler of the state. He is the head of the council of ministers, and all the powers of the president are actually exercised by the prime minister. ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये बात कि प्राइम मिनिस्टर जो है, इन इंडिया देयर इज ए parliamentary system of government, and in a parliamentary system of government the actual powers, the real powers are exercised by prime minister. On the other hand, he is the ruler of the cabinet. He is ruler of the council of ministers. And so far as the head of the president is concerned, I discussed a lot about the powers of president of India. But I repeatedly told you that it is the council of ministers headed by prime minister, who always guides to the president of India, and president of India is always bound by the council of ministers, and it is always bound by the consent of prime minister, so he is enjoying real powers, actual powers, and I discuss one by one. Dear students, so far as the appointment of the Prime Minister is concerned, how the Prime Minister of India is appointment, यानी कि his appointment of Prime Minister. ठीक है, क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में आता है कि how the Prime Minister of India is appointed. ठीक है, this is very important. Generally we say that prime minister is appointed by the president, but while doing so, the president is not having a free hand. परसों मैंने आपको बताया था अपॉइंटमेंट्स में, प्रेसिडेंट जो है, he has appointed all the top officials, whether prime minister, governors, chief justice of Supreme Court, high courts, comptroller and auditor general, but always bound by the advice of council of ministers headed by prime minister. ठीक है, but there is a question, how the prime minister is appointed. यानी कि क्वेश्चन इस तरह आता है एग्जाम में, how the prime minister is appointed. Constitutionally, he or she is appointed by the president, but their president is not having a free hand. ठीक है, पहले सवाल यहाँ पैदा होता है, प्रेसिडेंट उसको चुनता है, लेकिन वो किसी भी बंदे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुन नहीं सकता है. उसके लिए ये रूल होता है कि हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं हर 5-5 साल के बाद. आफ्टर एवरी 5 years जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया. ठीक है, और उसमें क्या होता है, द पार्टी हु गेट्स मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन लोकसभा, definitely the leader of that very particular party become the prime minister of India. ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करती है लोकसभा में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहाँ पे होता है, इन लोकसभा. राज्यसभा
परमानेंट हाउस है और लोकसभा जो है वो टेम्परेरी हाउस है 5 सालों के लिए, और उस लोकसभा का हेड जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसको चुना जाता है थ्रू जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शंस में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती है, और उनको पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज़्यादा सीटें जो हासिल करती है पार्टी, उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया जाता है, ठीक है। जिस तरह से हम देखा नरेंद्र मोदी की बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लीडर रहे, चाहे हम यहाँ पे 2014 जनरल इलेक्शंस की बात करें, या 2015 जनरल इलेक्शंस की बात करें, या 2019 में यहाँ पे जो चुनाव हुए 70th जनरल इलेक्शन उनकी बात करें, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी they got majority of seats in Lok Sabha. They got majority of seats in Lok Sabha. And obviously, the leader of that very particular party, Shri Narendra Modi ji, is appointed as a Prime Minister of India. ठीक है? So, अब यही याद रखिएगा बच्चों कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें हासिल होती है, उस पार्टी का लीडर जो होता है उसको प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब मसला ये है कि इफ नो पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन लोकसभा, ये बात आप याद रखिए कि अब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो सीटें हासिल नहीं की, वो स्कोर हासिल नहीं किया जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ज़रूरी है, उस वक़्त क्या किया जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि यहाँ पे इफ़ नो पॉलिटिकल पार्टी गेट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन लोकसभा, ठीक है, even then the president is not free to appoint anybody as a prime minister. Under such circumstances, only that person who will be invited to form the government, who can seek the cooperation of the majority of members in Lok Sabha. ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, जबकि हमारे यहाँ 543 सीट्स है, उसका जो हाफ बनता है नियर अबाउट 272 होनी चाहिए, तब जाके वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। अब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 272 सीटें हासिल नहीं की, उसने 200 सीटें हासिल की हैं या 220 सीटें हासिल की हैं या 250 भी सीटें हासिल की हैं, लेकिन यहाँ पे वो इस काबिल नहीं है कि वो सरकार बना सके, उस वक़्त क्या किया जा सकता है, उस वक़्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको टाइम देगा कि जो भी पार्टीज वहाँ पे होंगे, चाहे लीडिंग पार्टी है या अपोजिशन में पार्टी हो वो वहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को उसके साथ कोऑपरेट करके, यानी कि कोalition गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। When 2 or more than political parties join hands together, they form a government. That is known as coalition government. ठीक है, फिर मिली जुली सरकार बनती है। सो अगर किसी के पास 220 सीटें हैं लेकिन वो कोऑपरेशन हासिल नहीं कर पाते हैं दूसरे लीडर की, और वो उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, जबकि कोई यहाँ पे 200 वाला ही है या 190 वाला ही है, लेकिन उसको दूसरी पार्टी जो है वो उसको बराबर सपोर्ट कर ले, वो 462 सीटें वो बना के दूसरों को मिला के, इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी पॉलिटिकल पार्टी की इनवाइट कर सकता है, ठीक है, कि वो सरकार बना ले और उसी में से वो लीडर अपॉइंट कर सकता है। ये बात याद रखिएगा बच्चों। तो ये हुई बात अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है, ये हुई बात किसके बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में। Then the another term is another point is term of office. Term of office.
प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कितने सालों के लिए हम उसको चुनते हैं? जनरली तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 5-5 सालों के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमें 5 सालों के लिए चुना, बट ऐसा कुछ नहीं है. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड tenure of office. He remains in office so long as he enjoys the support of the majority party. ठीक है. प्यारे बच्चों, प्राइम मिनिस्टर जो है जब तक उसको मेजॉरिटी पार्टी सपोर्ट करेगी तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा. एट द मोमेंट ही विल लूज कॉन्फिडेंस, so definitely he has to resign. तो उसी वक्त वहाँ पे क्या किया जाता है, वो सरकार टूट जाती है. तो जनरली 5 सालों के लिए चुनाव होते हैं. अब अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई. हमने पिछले इतने चुनाव हिंदुस्तान में हुए, उनमें से हमने देखा कोalition सरकार ही बनी. चाहे 1996 चुनाव की हम बात करें या 98 की चुनाव की हम बात करें, कहीं पे 11 दिन की सरकार देवी गौड़ा प्राइम मिनिस्टर की, तो कहीं पे अटल बिहारी सरकार रही 11 महीने की. तो फिर नए चुनाव कराने पड़े. ठीक है. जब 5 साल उन्होंने पूरे नहीं किए, तो बट द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि इनको एतमाद का वोट हासिल नहीं मिला. अब यहाँ पे कि जनरली वी इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 years, बट इट विल नॉट नेसेसरी ही विल कंप्लीट हिज टेन्योर, क्योंकि वो तब ही कंप्लीट टेन्योर कर पाएगा जब तक उसको मेजॉरिटी सपोर्ट करेगी. ठीक है. एट द मोमेंट ही विल लूज कॉन्फिडेंस, सो डेफिनेटली ही हैज़ टू रिज़ाइन. ठीक है. और जब उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा तो सारी की सारी सरकार टूट जाती है, तो नए चुनाव कराने पड़ते हैं. ये बात याद रखिएगा बच्चों. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अबाउट द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. प्यारे बच्चों, आज हमने अपॉइंटमेंट और टेन्योर के बारे में डिस्कस किया. कल हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.